গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি প্রত্যেকে খুব ভালো আছো। আমার মনটা একদম ভালো নেই। আমি প্রচণ্ড, কি বলবো, প্রচণ্ডই দুঃখে আছি। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলে আজকে চলে এসেছি। দেখো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চান পুজো করে এখনও চাও খাইনি, এত মন খারাপ হচ্ছে। মনটা খারাপ হওয়ার কারণটা তোমাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করব, এবং থাম্বনেলে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কেন আমার মনটা এত খারাপ। কারণ দুদিন আগে আমি তোমাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করেছিলাম আমার ফার্স্ট পেমেন্ট আসার, মানে লাইভে এসে বলেছিলাম, তো আমি খুশি ছিলাম। তো একটু একটু করে মরার থেকে আমার মনে হয় একবারে মেরে ফেলা ভালো। আমার সাথে দিন 10, আজ 24 তারিখ, 14 দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তো সেই ঘটনাটা ঘটার পরে আমি সেই সময় খুব দুঃখে ছিলাম। তারপর আমি কমপ্লেনও করেছিলাম। কমপ্লেন করার পরে আমি ভাবলাম মনে হয় ব্যাপারটা যে ঘটনাটা ঘটেছিল মনে হয় সেটা হবে না, যেহেতু আমি কমপ্লেন করেছি। তো ওদের দিক থেকে যে রেসপন্সটা আমি পেয়েছিলাম তাতে আমার সেরকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে একটা একটা করে মেসেজ মোবাইলে ঢুকছে, আর আমার মানে কি বলবো, আমার টেনশন বলো, আমার দুঃখ বলো, ততটাই বেড়ে যাচ্ছে। দেখো, ইউটিউবের পিছনে এত খেটেছি 8-9 মাস ধরে। মানে আমার একটা মোবাইল ধরো খারাপই হয়ে গেছে, এই যে মোবাইলটা আমি ভিডিও করছি এই মোবাইলটা এখন ভালো করে চার্জ নিচ্ছে না, এত অতিরিক্ত ব্যবহার করার ফলে। প্রচণ্ড গরম লাগছে, পাখাটা বন্ধ করে রেখেছি বলে। এত অতিরিক্ত ব্যবহার করার ফলে আমার মোবাইলটা এখন চার্জই নিচ্ছে না, তো কাজে আমাকে আবার একটা নতুন মোবাইল কিনতে হবে। মোবাইল কিনলে আমার দেখো, যেহেতু দুখানা চ্যানেল খুলেছি সেহেতু আমার ওয়াইফাই কানেকশান নিতেই হবে। সারাদিনে আমি 2 GB নেট আমায় দেয়, 2 GB নেটেও আমার হচ্ছে না। মানে সারাদিন এতটাই মোবাইল ইউজ হয়ে যায়, সন্ধ্যের পর থেকে আর মোবাইলে মানে জিরোই দেখায়। তো আমি 25 টাকা করে রিচার্জ করতেই থাকি। তো যাই হোক, এইগুলো বললাম আমার এই ভিডিও করার ফলে আমার কি কি হয়েছে। মানে মোবাইলটা আমার ধরো খারাপ হয়ে গেছে, আমাকে ওয়াইফাই কানেকশান নিতে হবে, আমি এত টাকা রিচার্জ করা সত্ত্বেও আমার মোবাইল মানে সাথ দিচ্ছে না। এসব ঘটনার পরেও আমার সাথে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার না করে পারছি না। প্রত্যেক দিন মেসেজ আসছে, এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে, তো একবারে আমার মনে হয় যে যেটা হওয়ার সেটা হয়ে যাওয়াই ভালো। প্রতিদিন মেসেজ আসার থেকে একবারে যেটা হওয়ার হয়ে যাওয়াই ভালো। তো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলে এসেছি, বলতে পারো তোমাদের সাবধান করার জন্য এসেছি। আমার সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছে আমি চাই না আর কারোর সাথে এই ঘটনা ঘটুক। তো আমি একটু হিন্দিতেও বলে দিচ্ছি, কারণ অনেক ভিউয়ার্স ফ্রেন্ড আছে যারা আমার হিন্দি ভাষী বা ইংলিশ ভাষী। हिंदी तबू भाঙাচোরা হয়তো बुझे जाए, বাংলাটা একদমই বোঝে না। तो मेरा साथ ऐसा कुछ दुर्घटना दुर्घटना नहीं बोलूँगी, ये मेरा ही फॉल्ट है। मैंने कुछ मतलब ऐसा गलती मैंने कैसे कर दिया, ये मेरा समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को भी अलर्ट किया था कि पापा ऐसा काम मत करना, तो मैंने वही गलती कर दी। 9 मई को था, 9 मई को। तो मेरे उसके दूसरे दिन हमारे इधर पूजा था एक, तो उस दिन पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, सुबह से बहुत काम कर रही थी। तो शाम को जब कस्टमर मतलब खाली हो गया, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मोबाइल लेके जैसे मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि शाम को मेरा घर का इतना काम नहीं रहता है, तो मैं बिज़ी रहती हूँ, इसलिए मेरे जो काम वाली दीदी है वही मेरा शाम का खाना भी बनाते हैं। तो मोबाइल लेके मैं बैठ गई थी। और एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो बेटा है, उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पे एक ब्लूटूथ गिफ्ट किया था, तो मैं यूज़ करती हूँ। उसका भी ब्लूटूथ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, उसका ब्लूटूथ, वो भी पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो उसका भी ब्लूटूथ कभी कभी काम नहीं करता है, कभी चार्ज नहीं रहता है, तो मेरा ही ब्लूटूथ लेके वो चला जाता है। वो वाला ब्लूटूथ उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं वो ब्लूटूथ ये था, ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। तो कभी कभार उसको भी चाहिए होता है तो लेके चला जाता है। तो उस दिन क्या हुआ था, 9 तारीख को, 9 मई को, मैं शाम को नहीं, रात को जब 9 साढ़े 9 बजे मोबाइल लेके बैठ गई थी, तो कुछ दिन से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि एप्पल का ब्लूटूथ 99 रुपीज़ में ऑफ़र में है, और टाइम भी उसमें लिखा था 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर अगर मैं उसको ऑर्डर करूँ तो 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। काफ़ी दिन से ये मैसेज मेरे पास आ रहा था, लेकिन मैंने जब मैं अपने बेटे को बोला कि आप ये मतलब ऑर्डर कर दो, वो बार बार ही बोलते थे कि मम्मी ऐसा काम मत करो, इसमें फॉल्ट होता है, इसमें ये होता है वो होता है। वो बहुत बार मुझे अलर्ट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरा क्या हो गया था, मैं उनकी बात मतलब दिमाग से हट गया था। मैं दौड़ते हुए उसके पास गई, वो वाला मैसेज मुझे दोबारा आया, लेकिन उसमें फ्लिपकार्ट लिखा था। एक इससे पहले भी एक बार मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि ऑर्डर कर दो, तो उस दिन भी उसने बोला था नहीं मम्मी ऐसा ऑर्डर मत किया करो, ये फेक होता है आईडी। और उस दिन, जिस दिन की बात मैं बोल रही हूँ, 9 तारीख को, तो उसमें लिखा था फ्लिपकार्ट, उसमें लिखा था।
तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मैंने सोचा फ्लिपकार्ट ही है, फ्लिपकार्ट से ऑफ़र आ रहा है एप्पल का एक ब्लूटूथ 99 रुपीज़ में। मैं स्क्रीनशॉट इसमें देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मैं अलर्ट करना चाहती हूँ। आप लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज आए तो प्लीज़ इसका यूज़ मत कीजिए। जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहती हूँ और किसी के साथ हो। तो उसमें फिर भी मैं बेटे के पास भागते हुए गई और बोला कि बाबू इसको आप ऑर्डर कर दो, क्योंकि ब्लूटूथ मुझे भी एक चाहिए था। जैसे मैंने आप सबके साथ बताया कि मेरा ब्लूटूथ रहते हुए भी मेरा बेटा लेके चला जाता है बार बार। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग तो हाउसवाइफ है, काम करते करते बात करते हैं सबके साथ, तो ब्लूटूथ रहता है तो काफ़ी आसान होता है बात करने में। मोबाइल लेके कान में लेके और हाथ में पानी वानी भी रहता है, तो उसमें मोबाइल का भी इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए फिर मेरे बेटा ने बोला, पहले बोला नहीं ये सब मत करो, तो मैंने बोला नहीं नहीं तुम कर दो ना, मुझे एक ब्लूटूथ चाहिए तो आप कर दो। तो उसको जैसे मैंने फ़ोर्स किया, उन्होंने खुद नहीं किया, उसको फ़ोर्स किया, तो वो भी जल्दी जल्दी कर रहा था, क्योंकि मैं उसको बोल रही थी कि इसमें 5 मिनट है, देखो 4 मिनट है, जल्दी जल्दी आप ऑर्डर करो वरना ऑर्डर नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं होगा ऑर्डर। तो भागो जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो उसमें एक ओटीपी आया। पहले तो ओटीपी नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम लगा रहे थे ओटीपी में, तो हम लोग टेंशन में थे ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ओटीपी आया। मैंने मेरे बेटा ने जब ओटीपी उसमें डाला, उसमें देखा 12,430 एक 30-31 ऐसा ही कुछ रुपया था। उसने ध्यान नहीं दिया, छोटा सा था ना, तो ओटीपी पहले उसने दे दिया। ओटीपी देने के बाद फिर देखा, फिर एक ओटीपी आया, तो उसमें उसने ध्यान दिया, इससे भी ज़्यादा अमाउंट था उसमें। इसमें 12,000 था, उसमें 14,000 कुछ था। तो उसने तुरंत बंद कर दिया मुझे बोला मम्मी देखो शायद आपका ज़्यादा पैसा चला गया, 12,431 31 रुपीज़ शायद आपको चलेगा। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकती, तो फ्लिपकार्ट दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट में तो ऐसा फ्रॉड मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि फ्लिपकार्ट से मैंने काफ़ी सारा चीज़ें ऑर्डर किया है इससे पहले भी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने सोचा ये तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। फिर मेरे बेटे ने बोला नहीं मम्मी, पहले का जो ओटीपी दिया ना उसमें 12,431 रुपये ही था। तो तुरंत मैंने, मेरे दीदी का लड़का है उसको मैंने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने सारा बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मौसी आप ब्लॉक कर दो कार्ड, आपका जो नंबर है ना कार्ड का। ओह ये तो आप सबके साथ बताया नहीं कि जिस कार्ड से मैंने ओटीपी, जिस कार्ड से मैंने ऑर्डर कर रही थी वो क्रेडिट कार्ड था। तो क्रेडिट कार्ड पहले मेरे पास नहीं था, तो मेरे बेटा का एक आन अकेडमी में एक पढ़ाई की बात हो रही थी, तो उस टाइम क्रेडिट कार्ड ज़रूरी था, तो जल्दी जल्दी मैंने क्रेडिट कार्ड बनाया। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया, उसमें दिखा रहा था डेबिट कार्ड, मतलब फ्लिपकार्ट की जो ऑर्डर है उसमें दिखा रहा था डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में ऑर्डर हुआ। तो मैंने क्रेडिट कार्ड में ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा 99 रुपीज़ है, चलो क्रेडिट कार्ड में ही कर देते। तो पर क्या बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद तो जो हुआ सो हुआ, क्रेडिट कार्ड मतलब मैंने ब्लॉक कर दिया। तो जिस दीदी के साथ मतलब बात करके मैंने क्रेडिट कार्ड बनाई थी बैंक में, उसको मैंने 3 बार कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, शायद ऑफिस आवर्स नहीं थे इसलिए नहीं उठाया। दूसरे दिन उनको मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ पे नहीं था, मेरे घर के पास जो बैंक है उसमें नहीं था, वो दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो गया था। तो एक जन का उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, उनके पास भी गई। उनके पास जाने के बाद तो उन्होंने बोला आपने तो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप पहले उन्होंने मतलब कि कस्टमर केयर में कंप्लेन की, तो कस्टमर केयर से मुझे कॉल आया। तो कॉल आने के बाद मैंने क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। कस्टमर केयर से कॉल आया, मैंने सारी बात उनको बताई, देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ना तुरंत पैसा नहीं काटते, 50 दिन टाइम रहता है। जैसे डेबिट कार्ड में तुरंत पैसा कट जाता है अगर आप कुछ ऑर्डर करो तो क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें टाइम रहता है, बिल्कुल पूरा टाइम रहता है, 50 दिन टाइम रहता है। आपकी बैंक अकाउंट में अगर पैसा ना रहे तो आप बाद में भी पैसा डाल के वो कटा सकते हैं, 50 दिन इसलिए टाइम रहता है। क्रेडिट कार्ड एक्चुअली उधारी का ही कार्ड है। तो जैसे मैंने बैंक में कंप्लेन कर दी, लेकिन बैंक वाला बोलते हैं कि ठीक है, पहले बोलते थे ठीक है हम देखेंगे, लेकिन आपने तो ओटीपी दे दिया, ओटीपी दे दिया तो आपका पैसा ज़रूर कट जाएगा। तो मैंने बोला देखिए सर अभी तो पैसा तो उनके पास तो नहीं गया ना, मेरे अकाउंट से आप दिखा रहे कि कट कट जाएगा, लेकिन उनके पास तो नहीं गया, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ये 12,400 एक दो पैसे की बात नहीं है। देखिए अभी 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब में जब मेरा 8,000 रुपया आया, मैं कितनी खुश थी। आज देखिए सुबह मैसेज आया आपके अकाउंट से 12,431 रुपया चला जाएगा। देखिए किसी का तबीयत ख़राब होता है उसमें भी पैसा जाता है,
कुछ होता है, एक्सीडेंट हो तो उसमें जाता है, लेकिन ये गलती मैंने मतलब बैठे बैठे घर बैठे बैठे कर दिया। ये मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सोचती हूँ कि अगर पैसा काटना है तो तुरंत काट दो। रोज़ रोज़ मैसेज आता है पैसा कटेगा पैसा कटेगा, इससे अच्छा तो आप पैसा काट ही दो। मैं बहुत दुखी हूँ सच में। मैं सुबह आज मॉर्निंग में देखिए मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने सोचा मैं मेरा जितना व्यूअर्स फ्रेंड है मैं सबको अलर्ट करूँ कि मेरे साथ ये हुआ और किसी के साथ ये ना हो। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी। मैं देखिए मोबाइल लेके बैठ गई आप सबके साथ ये शेयर करने के लिए। तो क्या बोलूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। बहुत दुखी हूँ मैं सच में। आज सुबह भी मैसेज आया 12,431 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएगा। जून की शायद कुछ तारीख था, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगी तो उसमें। तो सच में मैं बहुत दुखी हूँ। अगर काटना है तो कट जाए, क्योंकि देखिए कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कभार तबीयत ख़राब भी हो जाती है, तो उसमें भी तो पैसा चला जाता है। मैं अपने मन को यही समझाना चाहती हूँ कि किसी भी तरह आज पैसा आ रहा है तो कल जा सकता है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मन है, नहीं समझते। बैठे बैठे मैंने इतना पैसा मतलब मेरी गलती से ही हो गया, और किसको मैं दोष दूँ, किसी को दोष नहीं दे सकती। और उस दिन देखिए जिस दिन मैं बैंक गई थी उस दिन आते टाइम जल्दी जल्दी में मैंने हेलमेट भी नहीं पहने थे। उस दिन देखिए पुलिस ने भी मुझे पकड़ लिया। 16,000 का केस देने वाला था, क्योंकि मेरा लाइसेंस अभी तक नहीं है। ब्लू और धुआं का जो एग्ज़ाम है वो भी नहीं था, और क्या बोले हेलमेट भी नहीं पहनी थी। तो मैं इतनी दुखी थी, तो मैंने पुलिस वाले को बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। लेकिन डिक्की में मेरा हेलमेट था, लेकिन मैं नहीं पहनी थी। तो मैंने पुलिस वाले जो भैया थे उनके साथ ये बात शेयर की, तो उन्होंने समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो पर्ची उन्होंने भी काट दी। तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई भी ऑर्डर ऐसे आते हैं तो आप प्लीज़ पहले जांच कर ले, उसके बाद ऑर्डर करें। और एक बात, बैंक वालों ने मुझे ये भी बोला कि पैसा तो आपका पहले कट जाएगा, क्योंकि OTP जैसे आपने दे दिया है, बाद में आपका पैसा रिफ़ंड भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये लिंक फ्रॉड होगा, हम लोग जांच करेंगे, ये लिंक फ्रॉड होगा तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, जब जिस लिंक में पैसा गया ही नहीं, मतलब उस जो लिंक मेरे पास आया था उस लिंक में पैसा नहीं गया था, तब पैसा क्यों जाएगा? जब मैं कंप्लेन करती हूँ कि ये ऑर्डर ये फेक था, ये लिंक फेक था, तब ये पैसा कैसे जाएगा? ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है। सच में मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो काम वाम तो करना ही है, घर का काम तो करना ही है। अब ये बात मैं आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। तो प्लीज़ आप, अगर मेरे वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक भी ज़रूर करना। जो नया व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलो टाटा। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब बहुत बहुत अच्छे रहिएगा और सावधानी में रहेगा, ऐसा कुछ आप सबके साथ ना हो, मैं यही दुआ करती हूँ। ओके, चलो थैंक यू सो मच।